Hello and welcome everyone to our third video. This is Snuhi and Rutvik. And in our previous video, we covered the first month of our task journey where we went through our classroom sessions at the Tata Management Training Center and the Bharat Darshan across different Tata companies in different parts of India. And of course, there's too much to cover, so not we couldn't cover everything. We just covered whatever was off the top of our head. And in today's video, we will talk about the year thereafter, which was our four stints across four different group companies, and uh, with a slight twist. So, two things that we will add to this. First is that we will break down the stint discussion into five parts. Okay. Correct. First part is where we will talk about our project. Second part where we'll talk about the people interactions that we had during the course of the project. Third will be about the peripheral attributes of the stint, because when task probationers go on their stints during the first year, group companies also give us accommodation, food, so on and so forth, like a number of other I say privileges Privileges that we get. are Correct. also included as a part of it. And fourth will be how much fun we were able to have, both during and outside of our work. And the fifth one was, what was the fifth one? Which stint would we want to come back to? Yeah, correct. Which stint would we want to come back to out of the stints that we discussed? इसके पहले, however, I think we should wager some money on who had the best stint overall. Who बोले तो of the two of us, we have completed 8 stints. Correct. And how confident are you that one of your stints is better than all four of mine? Extremely confident. रुक. I am ready to wager money. मैं निकालता हूँ पैसे. Mention the unit also. हाँ. अरे. Later on, we don't want a situation where he claims हम्म, that ये तो 250 पैसे की बात हुई थी. चल मैं लिख भी देता हूँ ना. सिंबल ही बना देता हूँ. Hmm. और डेसिमल साइन भी बना देता हूँ कि कोई क्लैरिटी रहे पूरी. तो Okay. आई एम वेजरिंग 250 रुपीज. ठीक है. 250 रुपीज. Okay. आई एम कीपिंग. ब्रिंग इट ऑन. 1000 श्रीलंकन रुपीज. 1000 Sri Lankan rupees, 250 इंडियन 250 रुपीज. each. चलो. Okay, डन. done. कूल. तो we begin. स्टार्ट करें. हाँ. लेट्स गो. अच्छा, ऑल्सो जो भी हर एक पार्ट में, मतलब अब हम अपना स्टेंट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, हर एक पार्ट में जो भी जीतेगा, मतलब जिसका भी बेटर रहा रहेगा, वो वाला सेक्शन ऑफ द स्टेंट वो एक शॉट लेगा. आई कैन स्टार्ट. प्रोजेक्ट पार्ट ऑफ योर फर्स्ट. फर्स्ट स्टेंट. फर्स्ट. हाँ चलो. विल स्टार्ट विद द प्रोजेक्ट. So I'll continue from where we left off. So the last memory that we have of the video is कि हम बॉम्बे हाउस में बैठे हैं और हमारे पास स्टिंट लोकेशन के मेल्स आते हैं. एंड बिफोर दिस हमने एक फॉर्म भरा था जहाँ पे हमने उनसे, मतलब वी हैड डिस्क्राइब्ड आवर थॉट प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग द स्टिंट्स, हमें कहाँ स्टिंट्स चाहिए, डोमेन्स, कंपनीज, वॉट एवर, इन डेप्थ. एंड बेसिस दैट दे वुड हैव ट्राई टू गिवन अस द स्टिंट्स. नाउ जस्ट फॉर सम कॉन्टेक्स्ट, जब मैंने फॉर्म भरा था it was क्लियर कि मुझे क्या करना है. एंड जो मेरा पहला आस्क था दैट वाज ब्रांड मार्केटिंग एट अ रिटेल कंपनी, कुड बी DCPL और टाइटन. तो आई रिमेंबर, मतलब स्टिंट एलोकेशंस के मेल्स आ रहे एक के बाद एक. एंड माय फर्स्ट स्टिंट वाज विद टाइटन एंड इट वाज अ ब्रांड मार्केटिंग प्रोजेक्ट. तो जैसे ही वो मेल हिट करता है इनबॉक्स में, मैं 3 बार रिफ्रेश करता हूँ कि कोई रिकॉल तो नहीं हो गया. आई एम एक्सटैटिक, एकदम ओवर द, मतलब ओवर द मून एकदम. To give some context, my stint was with Titan Company. Now, Titan is a house of brands, and one of the brands is Fast Track. So my project was with the Fast Track marketing team, and unke bhi there are two parts. One is brand, and another is product. Product is where I currently work. My stint at that time was with the brand team, and my project was to execute the brand repositioning campaign for Fast Track. Uh, तो brand repositioning समझाने के लिए, every brand has its own personality. Let's say if I ask you, ki what comes to your mind when you think of Nike? Athletic, athleisure, sporty, Sporty, athletic. spontaneous. Correct. So this is what comes to your mind, and this is what represents Nike, and this is what Nike also wants to convey. तो हर ब्रांड की एक पर्सनालिटी, एंड कंज्यूमर्स के माइंड में वो पर्सनालिटी है. तो फास्ट ट्रैक यूज्ड टू बी अ ब्रांड व्हिच यूज्ड टू बी वेरी रेबेलियस. द कैंपेन्स इन द पास्ट, विराट कोहली के साथ, द एड्स दैट दे हैड रन यूज्ड टू बी वेरी रेबेलियस इन नेचर. बट एज टाइम प्रोग्रेसेस, एवरी ब्रांड हैज टू रिपोजिशन बिकॉज योर कंज्यूमर चेंजेस, मार्केट चेंजेस, बहुत चीज़ें चेंज होती है. वॉचेज एज अ कैटेगरी बिकेम अ फैशन स्टेटमेंट, एन एक्सेसरी, मोर ऑफ अ स्टेटमेंट पीस. तो फास्ट ट्रैक हैड टू रिपोजिशन इनटू अ फैशन फॉरवर्ड ब्रांड.
as an accessory brand and not just a watch brand Right. with a rebellious image. तो फास्ट ट्रैक को रिपोजिशन करना था, फास्ट ट्रैक की आइडेंटिटी इन कंज्यूमर्स माइंड्स चेंज करनी थी, तो फास्ट ट्रैक को रिपोजिशन करना था. A more recent example to make it more simple, if you think of Akshay Khanna, the movies that he used to do back in the day, 2000s में he used to do movies like Dil Chahta Hai, Hangama, where he used to be the lover boy, the lover boy next door. And now look at the movies that he's doing right now. Dhurandhar, Drishyam 2, Chhawa. And when you think of Akshay Khanna today, these are the movies and images that come to your mind when you think of him. Correct. तो उसने अपने आप को किया रिब्रांड, रिपोजिशन. दिस इज व्हाट फास्ट ट्रैक सेम वाज. अब ब्रांड कैंपेन के दो पार्ट होते हैं, स्ट्रैटेजी और एग्जीक्यूशन. जब मैंने ज्वाइन किया, स्ट्रैटेजी तो पूरी बन चुकी थी, मुझे एग्जीक्यूट करने बोला गया. अब एग्जीक्यूट करने के लिए भी जब एग्जीक्यूट करना है तो एक ब्रांड फिल्म बनती है, एक एड जो लॉन्ग फॉर्म होता है एंड लोगों को वो समझाया जाता है जो ब्रांड कन्वे करना चाहती है. उस टाइम पे फास्ट ट्रैक ने विजय देवरकोंडा को एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया था. एंड यार मैंने मतलब एक वीक लेट ज्वाइन किया, नहीं तो मैं शायद उससे पर्सनली मिल लेता शूट पे. ऐसे तो ब्रो, इफ यू वुड हैव जॉइंड 8 years बैक तो विराट कोहली से मिल लेता यार. मतलब आई वुड ब्लेम माय पेरेंट्स उसके लिए तो, बट नहीं यार चलो, मतलब ऑल फन असाइड. बट हाँ, मतलब द एग्जीक्यूशन ऑफ द ब्रांड फिल्म, द ब्रांड एड वाज डन. मुझे एडवर्टाइज करना था उसको. नाउ कमिंग टू द एडवर्टाइजिंग पार्ट ऑफ इट. अब एडवर्टाइजिंग में देयर आर टू पार्ट्स टू एडवर्टाइज इट, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में जब मैं पहले दिन पहुंचा तो माय मैनेजर टेल्स मी कि ऋत्विक, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट में तुम्हें रील्स बनानी है. एंड मेरा तो दिमाग फट गया कि यार, क्योंकि मैं मतलब रील स्क्रॉल करता था पूरे दिन और मुझे बहुत गालियां पड़ती कि तू क्या कर रहा है, तो पूरे दिन रील स्क्रॉल कर रहा है, लोगों को रील भेजे जा रहा है पूरे दिन, सबके रील रिप्लाई कर रहा है इंस्टेंटली, तो पूरे दिन लगा पड़ा रहता है क्या इंस्टाग्राम पे. तो मुझे तो बहुत गालियां पड़ती थी. अब मुझे मैनेजर कह रहा है सामने से कि ऋत्विक तुझे रील स्क्रॉल करनी है, यू विल बी पेड फॉर इट. तो मुझे तो बहुत मजा आ गया था. एंड दैट वाज माय एक्चुअल ब्रीफ. मुझे एक हफ्ते तक सिर्फ रील स्क्रॉल करनी थी और मुझे क्रिएटर्स आइडेंटिफाई करने थे, इन्फ्लुएंसर्स आइडेंटिफाई करने थे, कौन सा टाइप ऑफ रील्स वर्क कर रहे हैं, क्या हुक्स हैं लोगों के टू एंगेज द ऑडियंस. ये आइडेंटिफाई करना था जस्ट फॉर 1 week स्ट्रेट. आई यूज्ड टू वॉक इन एट 9 AM, सिट टिल 7 PM, एंटायर डे जस्ट स्क्रॉल इंस्टाग्राम. और मैं तो बहुत खुश हो गया था यार. मैंने अपने दूसरे बैचमेट्स को बताया था कि यार देखो क्या बढ़िया काम है, और सब वहाँ पे पागल हो गए कि वाओ. लेकिन आई थिंक उसके बाद नज़र लग गई किसी की, तो क्योंकि द नेक्स्ट वीक द एग्जीक्यूशन ऑफ इट स्टार्टेड, जहाँ पे सब क्रिएटर्स को शॉर्टलिस्ट करना है, उनको कॉन्सेप्ट देना है. उनके 40 क्रिएटर्स के आउटफिट्स एक साथ आ रहे हैं, किसका स्कर्ट देखना है, किसका पैंट देखना है. बट वेट, ये सब क्यों कॉन्सेप्ट देखना है? मतलब द इमेज आई एम गेटिंग इज दैट यू विल बी टेलिंग देम कि तुम्हें ये रील बनानी है मेरे लिए, ये पहन के. या Is that how एकदम it एकदम, happens? मतलब टू द डॉट. समटाइम्स दे आल्सो टेल अस व्हाट दे वांट टू डू, बट टू द डॉट हमें एक लेवल तो उन्हें बताना पड़ता है कि देखो हम ये तुम्हें कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, यू हैव टू एग्जीक्यूट इट, बिकॉज दैट इज हाउ इट एम्पलीफाइज. अगर तुम देखोगे कि 10 लोग सेम चीज कर रहे हैं तो तुम्हें लगेगा कि अच्छा फास्टैग ये कर रहा है, फास्टैग ये कर रहा है. मतलब तो दैट इज व्हाट, एक कॉन्सेप्ट तो बनाना पड़ता है, एक तो कॉमन टाइम थ्रेड होता ही है. तो उन सबको कॉन्सेप्ट बना के देना, एंड आई हैड टू गेमिफाई इट सो दैट पीपल आल्सो गेट एंगेज्ड. तो टू कम अप विद गेमिफाइड कॉन्सेप्ट्स उनको देना, एंड एट द सेम टाइम कोऑर्डिनेटिंग विद देम कि उनको वॉच मिले. अब वॉच मिले तो उसमें भी इतने सारे ऑप्शन है, उनको कौन सी वॉच चाहिए, उनको वो वॉच भेजो, उनके 40 लोगों के आउटफिट्स आइडेंटिफाई करो, उनको अप्रूव करो, उनके बैकग्राउंड्स अप्रूव करो, इतनी ग्रैन्युलैरिटी के साथ कि उनके रील पे कौन सा म्यूजिक लगेगा, कौन सा ट्रांजिशन लगेगा. तो आफ्टर अ पॉइंट तो My भाई God. मतलब इट गॉट टू मच. मतलब एक पॉइंट के बाद यू डोंट एंजॉय इट, फिर वो थोड़ा सा ड्रेजरी लगता है. बट ठीक है, इट वाज वेरी फन. मतलब आई हैड इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स वन ऑन वन, समझा, एंड सम ऑफ देम आर वेरी स्मार्ट. मतलब दे नो टू द डॉट कि उनकी ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, एंड इंस्टेंटली दे नो कि क्या करना है. वेरी स्मार्ट, fun, very fun, enjoyed that part of it. Second part was to advertise the ads, which is essentially running ads on different online platforms. To start off मुझे बता दिया था गया था कि भाई देख तेरे पास इतना पैसा है, तू मुझे रिटर्न मैक्सिमाइज करके दे. अब उसके लिए तो रिटर्न क्या होता है? मतलब सपोज आई गिव यू X rupees, रिटर्न बोले तो मोस्ट See, पीपल हैव टू बाय द वॉच और जस्ट सी द एड. different objectives, but mostly you would want them to buy the watch. That is your targeted metric. जो मैंने देखा था कि हम इतना पैसे लगा रहे हैं, कितने कंज्यूमर कितनी घड़ियां लगाते हैं, और उसका रेशियो ROAS, कि हम कितना स्पेंड कर रहे हैं ऐड पे और कितना रेवेन्यू आ रहा है हमें. सो एट अ वेरी बेस लेवल दैट इज व्हाट यू शुड ट्रैक. बट उसके भी स्टेजेस होते हैं, अवेयरनेस कि कितने लोगों को वो पहुंचा, कितने लोगों ने कंसिडर किया, जो पूरा फनल बनता है. तो अगेन मैक्सिमाइजिंग इट अक्रॉस डिफरेंट स्टेजेस, उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आइडेंटिफाई किया, पूरा एक प्रॉपर मिक्स बनता है of which cohort to target on which platform, when,
एंड कितनी फ्रीक्वेंसी पर उनको हम्म ऐड दिखाना है। ये पूरा एक मैट्रिक्स बनाया था। एंड दिस एवरी ब्रांड डज फॉर ऑल योर ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, मेटा, गूगल, इन सब पे तो सभी करते हैं। हाँ लुकिंग एट इट फ्रॉम अ offbeat platforms like Snapchat और Pinterest और Spotify, that was also very interesting. जहाँ पे Gen Z है, उस टाइम पे metrics on that platform was not very clearly defined. For example, Spotify पे if you run an ad, तो वहाँ हम्म पे कितने लोग उस ad को कितनी देर तक सुनते हैं, कितना scroll कर जाते हैं, कितने जगह, तो those metrics which are not very clearly defined, that was also very interesting to look at. तो वो प्रॉपर पूरा मीडिया मिक्स बनाया, क्रिएटिव्स डिप्लॉय हम्म किए एंड स्ट्रेटेजाइज करके रिटर्न्स मैक्सिमाइज करना था। prepared a plan, very comprehensive, pitched it, approved, ads run किए. हम्म। So that was the entire online advertisement plan. तो ये एक एक बार में वैसे अप्रूव हो जा रहा था व्हाट एवर यू वर नहीं नहीं, पिचिंग, या देयर मतलब वाज बैक अगेन एंड फोर्थ? देयर वर इनपुट्स, मल्टीपल पीपल, उनके मतलब सम पीपल वांटेड टू गो आउट ऑन वन प्लेटफॉर्म मोर, बट अगेन मल्टीपल स्टेक होल्डर्स अलाइन करके एक बार में तो अप्रूव नहीं होता, वो मल्टीपल राउंड्स ऑफ बैक एंड फोर्थ होते ही है। सम आई रिमेंबर कि एक टाइम में मैंने मतलब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी ऐड करवाया था। पीपल वर लाइक कि सिनेमा हॉल्स एंड ओटीटीज आर नॉट वेरी कॉमन, बट आई हैड सेड कि तुम एम्पलीफाई करो, फेस्टिव सीजन है, पीपल वुड गो आउट, स्पेंड मनी, यू शुड बी देयर। तो ये सब चीज़ें किया था। सेकेंड पार्ट वाज ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट। तो हमने ऑनलाइन देख लिया, हाउ डू यू रन एड्स देयर। ऑफलाइन में मैंने जो किया था, वन वाज योर ट्रेडिशनल आउटडोर होर्डिंग्स जो लगाते हैं ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट्स के लिए। अब जब होर्डिंग्स लगाना है तो लोगों को लगता है कि यार क्रिएटिव ही तो लगाना है, मतलब होर्डिंग ही तो लगाना है, बट आई थिंक दैट इज द इजियर पार्ट। जब मैं आया था क्रिएटिव्स लॉक था, एंड दैट इज द इजियर पार्ट। देयर इज एन एंटायर साइंस बिहाइंड इट कि तुम्हें कौन सी सिटी पे कौन सी लोकेशन लेनी है, यू हैव टू बिड फॉर इट, देयर आर मल्टीपल ब्रांड्स विच आर आउट देयर, एंड मतलब एकदम हॉक की तरह वो ट्रैक करते हैं एंड अटैक लाइक शार्क्स। मतलब एकदम वो फेस्टिव सीजन है, एवरी ब्रांड हैज इट्स ओन कैंपेन कमिंग आउट, न्यू प्रोडक्ट्स व्हिच आर कमिंग आउट, पीक सीजन है। मुझे याद है, मुझे एक बार सुबह 7 बजे आया था, मैंने मेरे रीजनल सेल्स टीम को कॉल कर दिया था सुबह 7:30 बजे कि देखो यार ये निकल जाएगा, एंड दे वर वेरी कोऑपरेटिव, कुडोज टू देम, उन्होंने बहुत हेल्प किया था। बट आई रिमेंबर कि उन्होंने जो साइड बताई थी वो आधे घंटे में निकल गई सुबह 7 बजे। दैट इज हाउ प्रोएक्टिव सम ऑफ द टीम्स, लेट्स से स्टार्टअप्स व्हिच आर वेरी लीन, दे आर। वो एक बंदा सब कुछ कर रहा होता है एंड फट से साइट मिला, निकाल दिया। एंड कई बार बैंगलोर में जब मैं था तो आई हैड टू गो एंड लुक एट साइट्स ऑल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू टेक अ मॉल साइट, मैं फिनिक्स मार्केट सिटी लूँ या कोरमंगला लूँ, मुझे लगता था कि यार यार होर्डिंग ही तो है, दिख जाएगा। बट इफ यू लुक एट इट कि अच्छा मतलब अगर मैं यहाँ पे इतना टाइम रहूँ तो मुझे क्या दिखेगा, क्या नोटिस होगा, मुझे कितना क्लियरली दिखेगा, मेरे माइंड में क्या रजिस्टर होगा, यहाँ पे अगर मैं देख लेता हूँ तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, वुड आई गो ऑनलाइन एंड सर्च, वुड आई वॉक इनटू द स्टोर। तो ये पूरा फनल बना के यू हैव टू आइडेंटिफाई अ प्रॉपर मिक्स कि कौन से सिटीज में कौन से लोकेशंस लोगे। एंड इसमें भी आई रिमेंबर मल्टीपल राउंड्स ऑफ बैक एंड फोर्थ हुए थे, क्योंकि यू आर अगेन वर्किंग विद अ वेरी टाइट बजट एंड यू कांट गो आउट एंड स्पेंड मतलब ह्यूमंगस मनी ऑन वन साइड, क्योंकि अगर रिटर्न नहीं आया तो यू आर डन। तो you'll have to मतलब not put your eggs in one basket, diversify your risks, similar strategy, multiple cities, multiple negotiations करके इसका भी एक proper mix बना। And one thing that we had also done was कि in cities like Chennai and Hyderabad we had taken up metro properties जहाँ पे पूरा metro would be covered in fast track visuals for a month, मतलब all the metro trains in those cities were covered in fast track visuals। तो ये पूरा एक प्रॉपर आउटडोर मीडिया मिक्स बना था। हमने और भी ऑप्शंस उस टाइम पे एक्सप्लोर किए थे, लाइक होलोग्राफिक advertisements that were coming out in malls, but basis whatever made sense on ROI and other parameters, हमने ये proper mix बनाया था, creatives deploy किए, and again sites were rolled out. So this was the entire project for 3 months, online as well as offline advertisement, कि एक brand campaign हो रहा है तो उसको how do you advertise it, and again worked with so many stakeholders, getting things done on time, very thin timelines, very sharp and tight budgets, how do you maximize the returns, hands-on experience, loved the stint. And to close off the stint, I had to make a presentation to my manager and skip manager, and which went through very well. So this was my entire stint experience in 3 months. बढ़िया। What about you? तो माई स्टेंट वॉज विथ TCS का CSR डिवीजन इन भुवनेश्वर। तो I'll explain it very ऐसे briefly कि TCS CSR has 5 programs that are running. Program बोले तो you have different objectives, like say one would be targeting education for children, one would be say digital empowerment for youth, so on and so forth. ऐसे 5 different उनके programs run करते हैं। At the time in which I had gotten my stint, देयर वॉज नो वे फॉर यू टू गेज कि इम्पैक्ट क्या हो रहा है इस चीज़ का। इम्पैक्ट बोले तो
कि कहाँ तक, लाइक सपोज इफ वी आर एजुकेटिंग अ किड टुडे, तो वो कहाँ फाइनली वो कहाँ पे पहुंच रहा है. हम different districts में is our program having more effect or less effect. Accordingly we can double down on similar districts, or maybe have interventions in the places where it is not having equal impact, so on and so forth. So this is how you gather feedback from your programs. There is a framework called, basically to measure, to evaluate, and to learn from whatever is happening on the ground. Fair. So again, there was some as a strategy and some like comprehensive framework पे narrow down करने वाला part of this, which my senior had done. मतलब he is also a task senior. उसका काम था to narrow down कि हमें कौन कौन से, suppose कौन से metrics हमें track करने चाहिए, what things we should look at in the short term, in the long term, different programs के लिए. तो वो strategic काम उनका था. I was taking a handover from him and going ahead with the so this was his last stint and my first stint. So we were like ekdam just, the project was just changing hands. And so I was in the implementation time, implementation के time पे मैंने ज्वाइन किया, जिसमें मुझे पहला हफ्ता टाटा स्टील के जो CSR डिवीजन है, विच इज टाटा स्टील फाउंडेशन, वहां पे स्पेंड करना था इन जमशेदपुर. तो 1 week I spent there to understand कि वो लोग जो अपने projects run करते हैं different places, how do they do it, because apparently in the industry they are the masters of this. They have really done a great job in capturing every single thing that they want. And a very rudimentary way to think about this is कि when suppose any company is claiming कि हम ये UNSDG के against हम इतना impact दे रहे हैं, तो back end पे maybe these processes for them are very sorted and clear cut, laid out, so they are able to easily capture this kind of data. तो आफ्टर स्पेंडिंग 1 week हियर आई देन हेडेड टू भुवनेश्वर. इन प्रोग्राम्स के भी जो स्ट्रैटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन टीम्स होते थे, उनसे मुझे लाइजन करना पड़ता था वन आफ्टर द अदर टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑन ग्राउंड. की नुआंसेस बोले तो, नाउ सपोज इफ यू आर इन द एजुकेशन प्रोग्राम, आप जाते हो एंड आप ऑलरेडी यू आर नोटिंग डाउन इन योर अटेंडेंस रजिस्टर कि मेरे पास 60 बच्चे आए आज, then I can tell you to record number of males and number of females. वो आप easily count कर लोगे. But अगर आप एक अटेंडेंस रजिस्टर पे ये नोट कर रहे हो, मैं अगर आपको बोलूँ कि नाउ आपको हर बच्चे का हाइट वेट भी देना है मुझे, that's not something you can easily capture. So that sense check had to be there. Keeping all of these things in mind, मतलब ये एक example हुआ, ऐसे there would be n number of things. So there were at least 30-40 parameters. Now just for child education there would be multiple metrics, like कि अगर हमने उसको LKG to standard 2 educate किया, did they end up finishing high school, did they finish middle school, did they finish your like senior as 11th 12th, did they go on to do a graduation, post graduation, what is their earning looking like, people were dropping out, what is their earning looking like, is this gendered, are women dropping out more, what age are they dropping out at, are they getting married after they're dropping out, so on and so forth. तो multiple उस पे करना है. Then also आपको ये भी check करना है कि where can you collect this data, like can you tag it to their mobile phones, can you tag it to their addresses, can you tag it to their Aadhaar cards, so on and so forth. कि क्योंकि सपोज अभी कोई लड़की अगर ड्रॉप आउट होती है, उसका शादी हो जाता है, उसका नाम अगर चेंज हो गया सिस्टम में, Correct. तो these kind of things you have to be cognizant of, it should not be double entry. Fair. तो now cap, तो this was basically putting together the whole thing. मेरे प्रोजेक्ट का आउटपुट लेके somebody who is very good with systems and software could have just sat down and made it into a system, मतलब like a software system of sorts. So this was my project. अब इसमें I just had one question. हाँ. ये जो पांचों प्रोग्राम थे, were they very different from each other or were they in the same domain? तो they were pretty much in the same domain, more or less. मतलब सब वही एजुकेशन, डिजिटल लिटरेसी उसी के अराउंड था, बिकॉज TCS का भी वही स्ट्रेंथ है. मतलब they also have people that can train and educate people in Fair. those domains. So if suppose it was a fashion company, maybe it would have been more on sustainable fashion, so on and so forth, recycling, all of those. But given that that's not the primary strength mode of the company, it was pretty much in that वही education/digital literacy But domain. this is a gold mine of data जिसको you can harness for country's betterment very strongly. या इनफैक्ट तो कंट्रीज बेटरमेंट तक भी छोड़ दो अगर, तो इसमें एक प्रोग्राम का ये भी चीज था कि हम उनको इतना ट्रेन कर पा रहे हैं क्या, कि विच इज अ मेट्रिक दैट वी हैड डिफाइंड कि वो TCS एंट्री लेवल जॉब के लिए गुड इनफ होने चाहिए. एंड इफ यू आर एबल टू पिक पीपल अप फ्रॉम रूरल एरियाज एंड इंडक्ट देम इनटू अ टाटा ग्रुप कंपनी, नथिंग लाइक इट. मतलब इस टाइप का शायद सोशल मोबिलिटी
बहुत ही रेयर होगा। तो करेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट था मेरा। मिड रिव्यू जब हुआ था, तो मिड रिव्यू हैपेंड विद द सीईओ ऑफ द डिवीजन। तो ही इज आल्सो एन एक्सेल एलम एंड ही वाज आल्सो क्वाइट कीन टू मतलब गो थ्रू द प्रोजेक्ट इन अ लॉट ऑफ डिटेल। बट उन्होंने एक और चीज ऐड कर दी थी फिर प्रोजेक्ट में कि तो दो प्रोग्राम जो है वो पूरे ग्लोबली रन करते हैं। तो देन for two of the programs, then I had to do this entire exercise globally and superimpose with what is already present. तो global teams में थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा काम इन्होंने कर रखा था, बट वही है कि अगेन देयर वाज नॉट अ डेडिकेटेड पर्सन लुकिंग आफ्टर इट, तो वो छूट गया था। तो टू पिक दैट अप एंड मूव अहेड विद इट, मतलब कंप्लीट द एंटायर एक्सरसाइज। तो उस टाइम पे थोड़ा like it got a bit hectic because their timings are Yeah, different. एकदम different from That is us। what I'm wondering कि Indian हाँ times पे खत्म हुआ, then you have your global teams. या तो वो वाला पार्ट थोड़ा सा टाइट हो गया था, बट and then finally again at the end of my project I had to present to a lot of people because three of us were doing our stints. I remember final presentation में हर किसी के project के manager, उनके skip managers, Wow. CEO of the division, and he got couple of other people with him. Now by now the global teams have told कि हमारे साथ कोई काम कर रहा है उसका last day है करके, तो वहाँ के लोग तो it was Oh my मतलब God. presenting to some 50 people on a call, but Wow. but yeah, it was a great experience. Sounds very interesting यार, मतलब हाँ तो straight out of B school head, मतलब look into the CSR division of Tata Groups, one of the biggest companies. हाँ तो Fun. I'll have my diet coke नहीं, on it's this not so note. easy, come on, it's not so easy. Now we'll decide as to which project was better. हाँ clearly mine was नहीं यार, मतलब मतलब I genuinely think mine is better. Because if you think of it, मतलब you get to do things, and I think you had also said in one of the earlier videos कि तुझे operator बनना है. So I had gotten my hands dirty. मतलब whatever you have learnt, you're implementing to the dot. And मतलब मुझे नहीं लगता वैसे, आई डोंट अग्री टू मतलब आई अग्री कि लॉन्ग टर्म मुझे ऑपरेटर रोल करना है, बट एज अ yeah, स्टिंट आई थिंक जो मेरा काम था वो बहुत ही डिफरेंट था, बहुत ही नुआंस्ड था। एंड इतना मतलब यू गेट टू सी थिंग्स दैट यू हैव नॉट सीन बिफोर, लाइक द वर्क दैट यू डिड, आई थिंक यू कैन डू इट ऑन योर करंट जॉब ऑल्सो। तो दैट वे इज द एक्सपोजर आई थिंक वॉज बेटर फॉर मी। बट आई थिंक चलो आई गिव इट टू यू, द ओनली रीजन बीइंग कि आई थिंक मोस्टली आवर ऑडियंस विल बी स्कूल ग्रेजुएट्स एंड people are more inclined towards doing marketing roles and brand roles than CSR strategy kind of roles. So ठीक है, तो ठीक है, मतलब I get it. So I'll have the shot. one down. One down. चलो, तो we'll now move on to the second part which is the people part. Hmm. तो क्योंकि तेरे प्रोजेक्ट में इतना ज़्यादा मतलब कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन इन्वॉल्व था, just so that we don't miss out on anyone, let's keep it as two parts: people that you had to work with within Titan and people that you had to work with outside of Titan, like your vendor partners, your agencies, your influencers, so on and so forth. Correct. तो my earliest memory of people at Titan was I walk into the office 9:30 in the morning, मेरा पहला दिन है, मैं प्रॉपर फॉर्मल कपड़े पहन के पहुंचा हूँ, एंड दैट इज द इमेज आई हैड इन माय माइंड कि हाँ टाटा कंपनी में लोग वैसे ही होते हैं. I go there, I see people wearing oversized cargos, oversized tees, proper sneakers, colorful, and that is the image that I see. And तब मुझे पता चला कि Titan is a very liberal and a very open-minded company, very forward in terms of forming policies. For example, हमारा Wednesday used to be work from anywhere. हम्म, तो हमारी जो पूरी टीम थी, we used to go some of the happening spots in Bangalore, Kurmangala, Indira Nagar. We used to work out of co-working spaces, and मतलब बहुत अच्छा लगता था. हम्म, And that was reflective of my entire tenure at Titan. Titan, my team used to be very young, very fun, बहुत मज़ा आता था. The regional sales team जिनके साथ मैंने काम किया था, they used to be very proactive, and some of those relationships I carry till date. And जो मेरे external vendor partners थे, वो भी उनको भी पता था कि मैं नया बंदा आया हूँ, मैं पहली बार ये सब कर रहा हूँ, but they were extremely helpful and very proactive in terms of helping me out. So they also made my life simpler to the extent possible. बढ़िया What about you? How was your experience? यार। आई थिंक पीपल एट टीसीएस तो वर रियली रियली ग्रेट, मतलब ऐसे इनफैक्ट व्हाट यू आर टेलिंग कि लोग ऐसे शर्ट पैंट पहन के आते थे, तो टीसीएस में ना ऐसा मैंडेट नहीं है कि शर्ट पैंट पहन के आना है, तुम कुछ भी पहन के आ सकते हो, बट इट जस्ट सो हैपेंस बिकॉज द एवरेज एज आई थिंक ऑफ द कंपनी वाज स्लाइटली ऑन द हायर साइड दैट पीपल एंडेड अप कमिंग लाइक दैट। बट सडनली यू विल सी, एक दिन जैसे मैं जाती हूँ, एक अंकल पूरे अपने टेनिस के कपड़े में आए हैं, वो ऑफिस ही वैसे आए हैं, अपने वाइट शर्ट वाइट शॉर्ट्स अपना हेड बैंड पहन के, एंड फुल डे वो काम करेंगे एंड देन वो शाम को कहीं खेलने जाएंगे। तो दीज काइंड ऑफ इंसिडेंट्स यूज्ड टू बी वेरी कॉमन। आई थिंक आई थिंक that ways it was very different from you because I don't think anyone there was similar to me because I
while I did have some batchmates doing a stint in TCS, yes sir, उनका location अलग था. तो भुवनेश्वर में I was the only person. If I am to ऐसे talk about people there, I think जो जिनके साथ मेरा काम होता था, insanely helpful. मतलब I really cannot think of कि मतलब उनका, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं था, उनका कुछ नहीं होना था. उनका इनफैक्ट काम बढ़ ही जाता, अगर मान लो सिस्टम वगैरह आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप फॉर देम इज डिफिकल्ट टू नाउ रिकॉर्ड ऑल दिस, टू नाउ keep everything. But the kind of help that was given to me, my goodness. And I think my boss was also fantastic. It was my only, and it is to date my only experience where my boss has been female. So I think just in terms of how much empathy she used to come with, वो कैसे feedback देती थी, मतलब ये सब मुझे आज तक काफ़ी ज़्यादा, मतलब आई कैरी दीज थिंग्स विथ मी टिल डेट. आई थिंक इवन इम्प्लीमेंटेशन टीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, people who had nothing to do, matlab people who were genuinely just selflessly helping a person out, great experience with people. I think वही कि वो चीज़, वो प्रोफेशनलिज्म तो आई थिंक टीसीएस में बहुत ज़्यादा था, ऑल्सो बिकॉज दे हैव अडेप्टेड टू दिस रिमोट वर्क सेटअप वेरी इजीली. तो अक्रॉस बॉर्डर्स, अक्रॉस प्लेसेस लोग काफ़ी अच्छे से मतलब बहुत ही अच्छे से हेल्प करते थे. उन्होंने, मतलब मेरा जब फाइनल साइन ऑफ था तो हमने टीम्स पे केक काटा है कि आज फाइनल डे है करके. तो इट वाज रियली स्वीट. मतलब कुछ टीम्स ने, कुछ ये प्रोग्राम्स की जो टीम्स थी, उन्होंने एक छोटी पीपीटी वगैरह बना के लाए थे एज अ सेंड ऑफ. वो इट वाज वेरी वेरी स्वीट एंड नाइस. नाइस. आई थिंक वी हैव अ टफ कंपटीशन अब पीपल में. हाँ, बट आई थिंक आई शुड टेक इट हियर, क्योंकि Yeah, I think I would give it to you solely because the diverse range of people that you have worked with. My set was हाँ very homogeneous, very fun people to work with. हाँ, प्लस आई थिंक तेरा वर्टिकली भी बहुत लिमिटेड होगा टू हाँ, जस्ट योर स्किप बॉस. वैसे आई थिंक that even that band of correct. communication for me was quite open in TCS. So that ways I think TCS Yeah, I think takes the cake. Finally, I get my Diet Coke. So second one down, first one for first one me. for you. तो चलो, we'll now move on to the third part of this, which is the arrangements. तो जब भी हम कोई भी स्टेंट करने जाते हैं इन अक्रॉस एनी ग्रुप कंपनी, ये जो सारा हमारा वहाँ पे रहने का इंतज़ाम होता है, लाइक अकोमोडेशन, फूड, इंटरसिटी ट्रैवल, इंट्रा सिटी ट्रैवल, एयरपोर्ट टू एंड फ्रो, ये सब कुछ वो कंपनीज ही कवर करती हैं. तो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट, व्हाट वाज योर टाइम लाइक एट टाइटन? So at Titan, we were put up in Titan's guest house, which was a villa, and it was very close to the office, which I think was the best part about it because Titan में मतलब बैंगलोर में the traffic is so bad कि वो विला मान लो ऐसे 1 किलोमीटर भी था तो भी 25 मिनट लगता था. तो considering that, it was a very good choice. But in that villa, I was given a room, and there used to be a caretaker also, जो मस्त एकदम घर जैसा खाना बनाता था. He was from Calcutta only, and मज़ा आ गया था. बिल्कुल घर जैसा खाना होता था. एंड लॉन्ड्री वाज आल्सो टेकन केयर ऑफ. ऊपर एक वॉशिंग मशीन था. तो दैट वेज एकदम घर जैसा लगता था. द स्टे एंड अरेंजमेंट, एवरीथिंग फेल्ट लाइक होम. बाहर एक प्रॉपर वॉकिंग एरिया भी था. देयर यूज्ड टू बी अ प्लेग्राउंड एज वेल. देयर यूज्ड टू बी अ टेनिस कोर्ट. हाँ, तो मतलब ये विला एक कॉलोनी में था. हाँ, it was in a colony. There were a set of villas which were lined up, and उन सबका arrangement हुआ करता था. There used to be a clubhouse. So that was, the arrangement was very nice. We could have played any games, and everything was taken care of. Even when I used to go for market visits, I remember in Hyderabad I was put up at Taj Krishna. In Chennai I was put up at company's guest house, which was again a very lavish duplex. So that was the arrangement at Titan were एकदम amazing. मजा आ गया था. नहीं यार, आई थिंक अ सिमिलर एक्सपीरियंस इन टीसीएस एज वेल. आई थिंक, चलो आई थिंक ये तो अक्रॉस कंपनीज आई थिंक ज़्यादा वेरी नहीं करता होगा, बट टीसीएस ने भी सुपर अरेंजमेंट किया था इन भुवनेश्वर. आई वॉज इन अ वेरी नाइस 4 स्टार होटल, मतलब लेमन ट्री प्रीमियर था वहाँ पे, एंड वो नया नया खुला था. तो भले वो मतलब 4 स्टार, बट इट टू मी तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट होटल्स आई हैव एवर बीन इन, बिकॉज इट वॉज ब्रांड न्यू. So everything was brand new, and they were also at peak hospitality because most of them were. I was probably one of their first customers, and I was the first customer who was staying for such a long term period. तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. एंड खाने वाइज आई थिंक मेरा खाली ब्रेकफास्ट कवर्ड था, बट वही क्योंकि आई वाज स्टेइंग फॉर सच एन एक्सटेंडेड स्टे, एंड उनको पता था कि मुझे डिनर वगैरह भी चाहिए होगा, तो दे यूज्ड टू लेट मी पिक अप एक्स्ट्रा थिंग्स ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, टू कीप इट इन माय रूम एंड देन हैव इट फॉर डिनर. तो मेरा एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं लगा वैसे. एंड काफ़ी बढ़िया था यार ऐसे तो, बिकॉज द होटल यूज टू हैव अ जिम, एंड आई यूज टू यूज द जिम प्रैक्टिकली पर्सनली, क्योंकि कोई और नहीं जाता था. द पूल वॉज प्रैक्टिकली अ पर्सनल पूल. रूम से ऐसे दिखता था. कल्ट यूज टू होल्ड अ लॉट ऑफ सेशंस इन दैट होटल. तो जब भी, एंड आई थिंक दे वर कॉर्पोरेट सेशंस फॉर डिफरेंट कंपनीज के लोग ऐसे.
बट आई रियलाइज कि आई एम मिक्सिंग विद दैट क्राउड क्वाइट एफर्टलेसली. तो मैं काफ़ी उन सेशंस के लिए भी चले जाती थी, वो भी बहुत Hmm. मज़ा आता था. तो अरेंजमेंट्स वाइज तो इट वाज जस्ट सुपर्ब. एंड travel to and fro office was not covered for me. I think it was not covered for you also, but you Ah. had people to go and come with. But in that ways I was alone. So but I used to take the buses in Bhubaneswar, which were very convenient. So quite sorted, मतलब Hmm. very sorted in terms of all conveyances. जब जमशेदपुर से भी बैक एंड फोर्थ करना होता था तो मस्त ऐसे राजधानी में स्लीपर टिकट मिलता था, which in hindsight might not be that big a deal, but to my brain at Hmm. that point, क्योंकि मतलब रिजर्व टिकट वो भी राजधानी एसी टू टायर, तो was very good for me. नाइस. तो आई थिंक डिसाइड करते हैं आप. ये this seems like an equal हाँ, आई थिंक इसमें काफ़ी इक्वल equal. स्प्लिट है. Hmm. You can have half of my shot. तो देखो, उसने हाफ से ज़्यादा पी लिया है वैसे. एक सिर्फ बचा है. चलो, 1.5 डाउन. हाँ. तो ठीक है. तो नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट विच इज हाउ फन वाज द स्टिंट. तो Hmm. हाउ फन वाज द स्टिंट फॉर यू इन बैंगलोर ओवरऑल, मतलब जितना मान लो Hmm. एट वर्क और इवन आउटसाइड. यार, माई स्टिंट यूज टू बी वेरी फन एट वर्क ऑल्सो. मतलब इफ़ आई रिमेंबर, मेरे जो टीम वाले थे काफ़ी यंग थे, एंड काफ़ी टाइम ऐसा होता था कि टाइम लाइन स्ट्रेच हो जाते थे, तो वी यूज टू बी इन ऑफिस फॉर लॉन्ग आवर्स. एंड एवरी टाइम व्हेन वी आर इन ऑफिस बियॉन्ड द नॉर्मल वर्क आवर्स, वी यूज टू ऑर्डर समथिंग. पूरा प्रॉपर स्प्रेड आता था. वी यूज टू ईट, म्यूजिक बजता था, प्रॉपर पार्टी जैसा एनवायरनमेंट होता था. एंड काम हो गया होगा तो भी हम खा के एंजॉय करके ही घर जाएंगे. Apart from that, I used to have some TAS batchmates with me also. So on weekends also, we would go down to Church Street, watch movies. We used to play some sports. उसमें भी मज़ा आता था. And individually also, I think Bangalore is one place जहाँ पे you can have some communities which are very open to experiences. So there was one community which was very interested in the board games. तो जो जितने भी बोर्ड गेम्स होते थे, कटान और जितने भी फेमस बोर्ड गेम्स होते थे, देर यूज टू बी अ सेटअप एवरी वीकेंड, और मैं वहाँ पे भी जाया करता था. आई यूज टू मीट वेरी, मतलब डिवर्स सेट ऑफ पीपल देयर. और इन टर्म्स ऑफ फन आई रियली एंजॉयड माय टाइम. बढ़िया. मतलब मेरा इतना अ, मतलब इतना एक्सट्रोवर्टेड तो नहीं था स्टिंट, बट आई ऑल्सो हैड अ लॉट ऑफ फन, क्योंकि वही मेरा जिम मेरा पर्सनल था, पूल मेरा पर्सनल था, तो मुझे बहुत ही मज़ा आता था उसमें. प्लस मेरे कमरे में बहुत बड़ा ऐसा टीवी था, तो वो देखने में मुझे बहुत मज़ा आता था. प्लस भुवनेश्वर एज अ सिटी वाज एन एब्सोल्यूट रेवलेशन. मतलब इतनी अच्छी शहर शायद मैंने, आई थिंक नॉर्वे में बर्गन व्हेन वी वेंट वाज वेरी सिमिलर टू भुवनेश्वर, एक्सेप्ट लाइक द नॉन पेबल्ड रोड्स, क्योंकि बसेस प्लाई ऑन टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. भुवनेश्वर जैसी सिटी कैनॉट recommend it enough. Going to be the next big thing in India. It is Bangalore, but if Bangalore was better and ready for the development that it got. This felt more like a pitch for Bhubaneswar, a very strong one, but I get it. It was very fun for you in terms of experiences that you had, हाँ. activities. But this one I can give it to you because I think हाँ, traditional जो modes of फन fun में का शायद. डेफिनेशन रहता है, आई थिंक हाँ. सारे टिक मार्क हो गए थे मेरे बॉक्सेस. हाँ. तो आई टेक दिस वन. Yeah. 2.5 shut down. चलो, तो then the final part of it, which is if you had to go back, which one would you go back to of the two of our stints? I came back to the stint that I did. I came back and joined Fast Track. For me, the answer is very clear. I would come back and join the Fast Track team. तो नहीं, आई थिंक यू शुड थिंक अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ अ स्टिंट. एज अ स्टिंट वुड यू वांट योर स्टिंट or mine? I would still want my stint because just out of B school, I wanted to get my hands dirty to get all the principles. I could have done the stint at any point, but I think जो experience उस time पे मुझे मिला था, it was very enriching, and I would always come back to that stint. हम्म. मतलब मुझे लगता है कि आई वुड ऑल्सो वॉन्ट माई स्टिंट ओनली इन टर्म्स ऑफ you know the breadth of exposure and everything, and how different it being from our usual day to day jobs. So that angle, मतलब from that point of view, I don't think वैसा काम मुझे शायद लाइफ में कभी और करने को मिलेगा. Hmm. बट but chalo, I can give this one to you because in some way I also, matlab, I think Fast Track is also one of my most favorite brands and definitely my top brand for which I would want to work for. Hmm. Maybe not in the same role that you did your stint in, but just because you were with the Fast Track team, which is a very, matlab, which Hmm. is some place that I surely wish to go to someday. Um, you can have it. ठीक है, तो चलो. Final shot, 3.5 shots down.
So Titan, I wouldn't say Titan wins. I think for this particular video, Rutvik got to have more shots than I did because I conceded on some fronts in order to not take a contrarian opinion, is how we can conclude it. ठीक है, तो I took more shots ना. हाँ, he took ठीक more है, shots. done. चलो. I think that is victory for me. चलो. चलो. That's the end of this video. Episode 1. Episode 1 of our stints. Hmm. Next video we'll discuss our second stints and continue the game. Let's see. Yeah. Chalo. Bye bye. Bye bye.